سیداتی اگسینی یا مولاتی اگسینی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام مل کے یک زبان ہو کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وأولادها المقسومين الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المهديين ولعنة الله بشمار الظالمين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بلند سلام. اللہم صلی علی عاشقان رسول و عاشقان شوق بطول و عاشقان فرزند رسول گدایان در بطول حبداران اہل بیت رسول صداقت و غیر صداقت محبان نبی و اہل بیت نبی. ابتدائی گفتگو سب سے پہلے دعا ہے کائنات کا عظیم عالم ہمارے علم اہل بیت میں عظیم اضافہ فرمائے. ایسے نہیں کافی اب آپ تشریف فرمائے. پہلی دعا منگوائی بندوں نے دھیان ادھر ادھر کر لیا چند بندوں نے اپنی زبان سے آمین نہیں کہا. ابتدائی گفتگو میں بھائی جان معصوم کا فرمان پڑھ دیتا ہوں. معصوم فرماتے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی دعا مانگی جائے مل کے یک زبان ہو کے آمین کہا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ ہو لیکن آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو جائے. اس لیے سارے یک زبان ہو کے دعاؤں پہ آمین کہیے گا. اللہ میرے بھائیوں کی یہ صفحے عذاب بچھائی ہوئی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور علی زین العابدین کا صدقہ اس گھر میں اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائے. اور امام علی زین العابدین کا صدقہ مجھ سمیت پوری دنیا میں جتنے مومن مومنات بیمار ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ امام علی زین العابدین کا انہیں شفاء کلی عطا فرما. پوری دنیا میں جتنے مومن مومنات بے گھر ہیں میرے اللہ ابو تراب کی تراب پہ انہیں اپنے گھر عطا فرما. پوری دنیا میں جتنے مومن مومنات بے اولاد ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ شہزادہ علی اصغر کی پاک اماں کی اجڑی ہوئی گود کا انہیں اولاد نورینہ عطا فرما. میرے اللہ اس وقت تک کسی ایک مومن یا مومنہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک حسین ابن علی کے نوری محل کی زیارت نہ ہو. مل کے آمین کہنا یقیناً یہ دعا بھی ہے آپ کا میرا عقیدہ بھی ہے. میرے اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زبان پر ورد علی جن ولی اللہ جاری فرما. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. تمام دعاؤں کی ایک دعا ہمارے بارنے آقا حجت دورہ ولی رسول مولا کے ظہور میں تجلیل فرما. اپنی تمام دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لے مل کے بآواز بلند درود تلاوت فرمائیں. تعداد سے ہٹائیں آواز کم ہے کہ جملے کو بدل کے کہہ دیتا ہوں. جس شریف کو اس کی شریف مانے کائنات کے سب سے بڑے شریفوں پر درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے وہ اپنی شریف زبان سے آل محمد کی شرافت میں مل کے بآواز بلند درود تلاوت اجازت ہے جی کر شروع کیا کریں. انتہائی مشکور و ممنون ہوں عباس صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں لب کشائی کرنے کا موقع دیا اور آپ کے مقدس چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کیا. قبلہ زندگی کی پہلی حاضری ہے اس مقدس تحریز پہ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. پہلا جملہ پڑھنا ہے آپ کی سماعت میں مجھے بتانا ہے میں نے کیا پڑھنا ہے آپ نے کیا سننا ہے. میں نے کہا میں ابتدائی گفتگو میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. بندہ ایک بھی بولا ابتدا میں میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. میں نے اس لیے کہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ
کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. ملتان والوں، موسم اللہ علوی کا اپنا ذاتی عقیدہ ہے کہ کائنات کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ علی والوں کا مزاج ایک ہوا کرتا ہے. جس بندے نے ہاتھ رکھنے کے باوجود ابھی ابتدائی گفتگو میں بلند نہیں کیا، اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ کائنات کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ علی والوں کا مزاج ایک ہوا کرتا ہے. جملہ پڑا، بندوں کے چہروں پہ خاموشی طاری ہو گئی. چلو جملے کو بدل کے کہہ دیتا ہوں. جب عالم ارواح میں روحوں نے اکٹھے مل کے علی ولی اللہ کا اقرار کیا تھا، تو یقیناً پھر مزاج بھی ایک ہوگا. جب امام ایک ہے، پریشانی کی تو بات ہی نہیں، کہیں بھی چلے جاؤ علی والوں کا جب امام ایک ہے مزاج بھی ایک ہے. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، اپنی قوم کے ان بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کو کھول کے ہدیہ کر دیتا ہوں. ابتدائی گفتگو میں کوشش کروں گا، میں نے اس ہستی کو موضوع گفتگو بنایا ہے. بندے نہیں، بندوں کے چہرے بولیں گے علی کے نام نے کہاں کیا اثر کیا ہے، علی کے نام نے کہاں کیا اثر کیا ہے. جن بندوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں علی دھڑکن بن کے دھڑک رہا ہے وہ بندے چپ رہ نہیں سکتے. میں کوشش کروں گا، میں نے یہ کوشش کی ہے ابتدائی گفتگو میں بھائی جان موضوع گفتگو اس ہستی کو بنایا ہے جسے نبیوں کے سلطان نے چار دیواری کے بند کمرے میں نہیں 1.25 صحابہ میں مولا بنایا ہے. سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ بندے ہاتھ بلند کریں. شرمندگی والی بات نہیں یار، میں علی کا بات کرنے لگا ہوں، علی کا نام لینے لگا ہوں. علی کا نام زندگی میں کبھی کہیں شرمندگی سے نہ لیا کرو. میں نے علی کا نوکر ہو کے سوال کیا، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہو وہ ہاتھ بلند کرو. بندوں نے ہاتھ نہیں بلند کیے. چلے میں جھک کے ہاتھ اٹھوانے کے لیے جملہ آسان کر دیتا ہوں. میں نے اس لیے آپ کی تائید لینی تھی ہاتھ بلند کرنا کہ جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. ہم نے جن اماموں کو مانا ہے ان کی طہارت کا بل اسمبلی نے نہیں قرآن نے پاس کیا ہے. شکرانے کے سجدے ادا کرو پھر بھی ادا نہیں ہوتے جو اس نے ہمیں علی جیسا ویر ادا کیا ہے. چلے میں چپ زبانوں کو حرکت دلوانے کے لیے بھائی نے بڑی اچھی ربائی پڑھی ہے مجھ سے پہلے ولایت کی تو میں نے بندوں کے چہرے پڑھ لے. چلے میں ولایت کا جملہ پڑھ کے بندوں کے مزید چہرے پڑھ لوں گا. کون کون سا بندہ کہاں کہاں معرفت کے کس سینے پہ تشریف فرما ہے. پہلی 2 سطریں میں نے پڑھنی ہے، آپ کے چہرے پڑھنے ہیں. اگر آپ کی سماعتوں نے ساتھ دیا میں اگلی 2 سطریں پڑھوں گا، ورنہ اپنے موضوع کا رخ بدل دوں گا. جو علی کے نوکر، علی کے حوادار، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہو، نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے. بڑے آگے ملتان کی دھرتی ہے یہاں لفظوں کی قدر ہوتی ہے. وہ بندے چپ کر کے میری طرف دیکھتے رہے جن بندوں کے گھروں کی چھت پہ غازی کا علم لہرا رہا ہے. وہ بندہ علی علیہ السلام کے فضائل میں میرے سامنے چپ رہ نہیں سکتا جس بندے کے ضمیر کی چھت پہ غازی کا علم لہرا رہا ہے. جتنے اچھے معیار میں آپ نے میرے جملے کو وصول کیا ہے یوں میرا دل کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ میں جملہ آپ کو ہدیہ کروں. میں کلیجے کا زور لگا کے علی کی عزت کی قسم سطریں پہنچانے لگا ہوں. بندے علی کے نوکر ہوں تاکہ سب چپ رہ نہیں سکتے. نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے. پڑھو جملہ قیمت ہوگے. نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے نادے علی سے ملتا ہے.
बैठे हैं। मैंने कहा ना दोस्तों, ना किसी अजनबी से मिलता है। बंदे चुप हो गए। जो हौसला मुझे नादे अली से मिलता है, जो बंदा अभी नहीं बोल सका, मैं जानता हूँ यही मौत की हकीकत है। अली के चाहने वाला अली से मिलता है। क्या कहने आपकी मार्फत के, क्या कहने आपकी समातों के। बोला आपकी समातों में मजीद इजाफा फरमाई। बोला खुदाए अली अलैहिस्सलाम में उठने वाले हाथों को गाजी के नूरी महल पे लगने के काबिल बनाए। बोला इन उठे हुए हाथों को बाद ज़हूर इमाम ज़मा की पाक नलैन पे लगने के काबिल बनाए। मैं और आसान कर देता हूँ, मैं हाथ बांध के जो बंदा लिसानुल्लाह को पीर मानता है और जुबान रखने के बावजूद अभी जुबान को हरकत नहीं दे सका, उसके लिए मैं आसान करने लगा हूँ। खसूसन आपकी तवज्जो के लिए मैं गुजारिश करूंगा, अपने पर्दे वाले उस वारिस के हुजूर जो पर्दा ग़ैबत में छुप के भी नबी की दस्तार का वारिस है। बैठा को बंदा जो बोले मेरे साथ, अपने आप को बारहवें की रैयत बना के बैठा है, बात उसके साथ करने लगा हूँ। मैंने कहा मैं गुजारिश करूंगा अपने पर्दे वाले उस वारिस के हुजूर, इससे धीमे ऐसे लहजे में बात पहुंचाने लगा हूँ, बच्चे भी बोले तो पढ़ने का लुत्फ आए। मैं गुजारिश करूंगा अपने पर्दे वाले उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए ग़ैबत में छुप के भी नबी की दस्तार का वारिस है, सैयदा की इस्मत का वारिस है। ऐसे नहीं लफ्जों पे बोलते आइएगा जो बंदा ज़हनी तौर पे बेदार हो गया है। मैंने कहा मैं गुजारिश करूंगा, ना 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 मुल्तान वालों हो नहीं सकता। बंदे अपने आप को अली का नौकर बना के बैठे हो, अली का हुक्मदार बना के बैठे हो, अपने आप को अली का हुक्मदार समझते हो और फज़ाइल अली का जुमला सुन के खामोश होके मेरी तरफ देखते रहे। मैंने कहा मुल्तान वालों मैं गुजारिश करूंगा अपने पर्दे वाले उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए ग़ैबत में छुप के भी नबी की दस्तार का वारिस है, सैयदा की इस्मत का वारिस है, अली की वलायत का वारिस है, हसन की सखावत का वारिस है, हुसैन की शुजाअत का वारिस है, अली ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का वारिस है। जुमला सुन के समझ के सारे बोलो तो पढ़ने का लुत्फ आ जाए। जो पर्दाए ग़ैबत में छुप के भी अली की वलायत का वारिस है, हसन की सखावत का वारिस है, हुसैन की शुजाअत का वारिस है, अली ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का वारिस है, बाकर के इल्म का वारिस है, जाफर की सदाकत का वारिस है, बाबुल हवाइज की काज़मियत का वारिस है, रज़ा की रज़ायत का वारिस है, तकी की तकावत का वारिस है, नकी की नकाबत का वारिस है, अस्करी की हैबत का वारिस है। जो बंदा जिंदा बैठा है वो चुप रह नहीं सकता कि मेरा 12वां शहंशाह अपने रुख अनवर से पर्दा ग़ैबत हटाए और दुनिया में आके हर बेज़मीर को समझाए हर वो सांस हराम होती है जिसमें अली ना हो। भाई इसीलिए तो मैं दुनिया के हर मिंबर पे जाके ये जुमला पढ़ता हूँ, वो आदमी आदमी ही नहीं जिसका अली आदमियत साज नहीं। होती है जो बंदा लफ्जों का खरीदार बैठा है। बड़े कीमती जुमले वो जुमले मैं पढ़ने लगा हूँ जो आपके इस नौकर ने, भाई ने, बेटे ने हजारों के इज्तिमा में पढ़े हैं। मुझे नहीं पता कौन सा अली का नौकर है जो फज़ाइल अली का जुमला सुन के मेरे सामने इस घर में और इज्जत अली की कसम है चुप करके बैठा रहेगा। मैंने कहा इसीलिए तो दुनिया के हर मिंबर पे जाके अली का मलंग, अली का नौकर, अली का ये होमदार हर मिंबर पे अली के नौकरों के सामने माइक पे मुंह रख के ये जुमले पढ़ता है। वो आदमी आदमी ही नहीं जिसका अली आदमियत साथ नहीं, वो मुसलमान मुसलमान ही नहीं जिसको अली की पहचान ही नहीं। आसान कर देता हूँ। मैंने कहा वो आदमी आदमी ही नहीं जिसका अली आदमियत साथ नहीं, वो मुसलमान मुसलमान ही नहीं जिसको अली की पहचान ही नहीं। कुछ बंदे अभी भी चुप बैठे हैं, वो इंसान इंसान ही नहीं जिसके दिल में कुल्ले ईमान ही नहीं।
सहने दिल में उतार लीजिएगा, वरना दरवाजा समाज से मेरे जुमले को मेरी तरफ वापस उल्टा दीजिएगा। वो इंसान इंसान ही नहीं जिसके दिल में कुल्ले ईमान ही नहीं, और वो दाता दाता ही नहीं जिसका अली दाता नहीं, वो पीर पीर ही नहीं जिसका अली पीर नहीं। बंदे चुप हो गए, वो सुल्तान सुल्तान ही नहीं जिसका अली सुल्तान नहीं, वो इमाम इमाम ही नहीं जिसका अली इमाम नहीं, वो हादी हादी ही नहीं जिसका अली हादी नहीं, और वो वली वली ही नहीं जिसका मुश्किल कुशा अली ही सारे मनाते तो है ना, चाहे कोई चौथा समझ के मनाए।
दूसरा 21 रमजान मनाते हैं। शहादत भी मस्जिदों में मनाई जाती है, इमाम बारगाहों में मनाई जाती है। लेकिन एक जिसमें आप मुझे ले आए हो, अब एक बंदा भी इस जुमले में बोला ना, मैं समझूंगा मेरा पढ़ना कबूल हो गया है, मेरे आने का मकसद हल हो गया है। ये जुमला ज़हनों में रखना। मैंने कहा एक 13 रजब मनाते सारे, दूसरा वो पिछले बोल रहे, दूसरा सारे बोलेंगे तो मैं अगला जुमला बोलूंगा। एक 13 रजब, दूसरा। लेकिन ये मेरे बंदे हाथ है अली वालों, ये जुमला ज़हन में रखना ना। 13 रजब को अली शुरू हुआ, उसके लिए आसान करता हूँ। 13 रजब से पहले अली था, 21 रमजान के बाद अली है। आपकी मार्फत में मजीद इजाफा फरमाए। पहला मंजर जब अल्लाह अली को अपने घर लाए, थोड़ा पीछे चलते हैं, ये वही घर है ना जहां जनाब मरियम रहती थी। कुरान कह रहा ना कि इनको अल्लाह ने कहा आप यहां से तशरीफ ले जाएं। मेरा ख्याल है आपकी चुप कह रही है, आप भी मुझे थोड़ी देर बाद के तशरीफ ले जाएं, क्योंकि अली के घर में चेहरों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। अली का नाम तो बता दे किसका किस शजरे से ताल्लुक है। माशाअल्लाह, वही अल्लाह का घर था जहां जनाब मरियम रहती थी, ये यहाँ रहती थी। अल्लाह ने कहा यहाँ से तशरीफ ले जाए, वो अपने घर रहती थी। मैं ज़्यादा ज़हमत नहीं, आसान करता हूँ। अली की अम्मा चली घर से, आसान करने लगूं। अली की अम्मा अपने घर से अपने ही घर की जानब से। जिन्हें पता है अल्लाह का घर इन्हीं का घर होता है। जो बंदे हैरान हो गए अली की अम्मा काबे के करीब आई, ये बातें मेरी कौम के बच्चों को भी पता है, लेकिन दोहराने के लिए इबादत समझ के पढ़ने लगा हूँ। अगर नए अंदाज में हो, लुत्फ आए, दिल से दुआ निकले तो फिर सारे हाथ उठाइएगा। अली की अम्मा काबे के करीब आई, बिला तशरीफ काबे की दीवार फटी। इसमें कुछ शक है किसी को? अली की अम्मा जैसे ही अल्लाह के घर के करीब आई, बिला तशरीफ काबे की दीवार फटी। मैंने बांधे हाथ, अब बोलना जो अली के रोके बैठे। मैंने कहा मेरे अल्लाह, मेहमान नवाजी के सलीके तूने तो हमें सिखाए हैं। मैं यहाँ आया, अब सब क्या मुझे इस घर की दीवार को तोड़ के अंदर लाया गया? बोलो, दरवाजे के जरिए से, दर के जरिए से, दर के जरिए से, दर के जरिए से। हालांकि मेरे अल्लाह तूने दीवार को क्यों तोड़वाया? हालांकि तेरे घर के दरवाजे के ताले की चाबी भी इन्हीं के घर पड़ी थी। मेरे अल्लाह, हालांकि तेरे घर के दरवाजे के ताले की चाबी भी इन्हीं के घर पड़ी थी, दीवार को क्यों तोड़वाया? मेरे अल्लाह, मेहमान नवाजी तूने हमें सिखाई है। अली की अम्मा मेहमान बनकर तो तेरे घर में आई थी। मेरे अल्लाह, ऐसा तरीके से जो मेहमान नवाजी का तरीका है, अपने ही घर के दरवाजे के ताले को खुलवाता, अली की अम्मा को बुलाता, अली को अपने घर लाता, अली को अपने घर लाता, अली को अपने घर लाता। मैं तब तक यही पढ़ता रहूंगा जब तक सबकी जुबानें नहीं हिलेगी। मेरे अल्लाह, अली की अम्मा को ऐसे तरीके से दरवाजा खोल के लाता, अली को अपने घर लाता, अली को अपने घर लाता। आवाज़ें परवरदिगार है, मौसम बेशक मेरे घर के दरवाजे के ताले की चाबी इन्हीं के घर में पड़ी हुई है। अगर अली की अम्मा ताला खोल के, दरवाजा खोल के मैं अल्लाह के घर आ जाती, क़यामत तक के लिए अली का मुनकर कहता अपनी मर्जी से आई है।
आवाज़ें परवरदिगार है मौसम तुझे नहीं पता मैंने क़यामत तक के लिए दुनिया को समझाना है मैंने क़यामत तक के लिए दुनिया को बताना है अगर अली की अम्मा दरवाजे के जरिए आ जाती क़यामत तक के लिए अली का मुनकर करता अपनी मर्जी से आई है अपनी मर्जी से आई है मैं ताला खुलवा के नहीं दीवार को खुलवा के अली की अम्मा को बुला के अली को अपने घर ला के दुनिया को बता रहा हूँ अकीदे दुरुस्त करो अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से समझता है जो खिताबत को समझता है जिसे पता मैं 100 में से 2% खिताबत के करीब जा रहा हूँ वो बंदा चुप रह नहीं सकता अली कहाँ है सारे बोलो अली आए अपने घर में आसान करता हूँ आपकी बात की तारीफ करता हूँ अली आए अपने ही घर में अली आए अपने ही घर में रसूल चले फिर अपने घर से बंदा जिंदा बैठा और बोले ना हो नहीं सकता रसूल चले अपने घर से जुमले मेरे नहीं फतवा मुझ पे ना लगाना अहले सुन्नत के मुअल्लिफ कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब में लिखे 16 रजब को 3 दिन 3 रातें अली की अम्मा अल्लाह के घर रही जो बंदा यूं 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 सर हिला रहा ना हम इज्जतदार हैं हमने इज्जत अली से सीखी है अली ने बताया कि इज्जत क्या होती है आज 1450 साल के बाद हमारे घर की मस्तूर 1 घंटा हमें बताए बगैर घर से बाहर चली जाए हम परेशान हो जाते हैं बाबा 3 दिन 3 रातें अली की अम्मा अल्लाह के घर में मैं नबी के जुमले को रोक के आपकी खामोशी को देख के जुमला आसान करने लगा 3 दिन 3 रातें यजीद बिन कानत 2 उसके लोग इन्होंने मंजर देखा इनका पहले तो कभी कोई मस्तूर ऐसे नहीं किया पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मक्के के कुछ बूढ़े लोग इकट्ठे हुए इन्होंने आके अली के बाबा के दरवाजे पे दस्तक दी मैंने कहा हम इज्जतदार लोग हैं हमारी मस्तूर 1 घंटा हमें बताए बगैर बाहर चली जाए हम परेशान हो जाते हैं बंदे आए अबू तालिब की दहलीज अली के बाबा की दहलीज अब इशारा समझिए अंदर से आए अली के बाबा आसान करो और आसान करो दिल से दुआ करो अंदर से आए कुल्ले ईमान के बाबा जैसे ही जनाब अबू तालिब आए इन्होंने दस्तक दी बाहर खड़े थे बूढ़े 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 तुम्हें नहीं पता 3 दिन हो गए तेरी जोजा अल्लाह के घर में ऐसे ऐसे चली गई है क्या खूबसूरत जवाब आपके मेरे पीर अली के बाबा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दिया जनाब अबू तालिब ने फरमाया अरे तुम्हें परेशानी किस बात की है जाने वाली जाने या बुलाने वाला जाने हमें चाबी दो हमने ताला खोलना है हमें चाबी दो हमने ताला खोलना है हज़रत अबू तालिब ने फरमाया ले जाओ चाबी लेके जाने का शौक है ये लो ले जाओ इन्होंने चाबी ले ली जैसे ही अल्लाह के घर के दरवाजे के ताले के करीब आए जो बंदा आगाज़ मजलिस से लेके अब तक नहीं बोला उसके लिए आसान करने लगा उससे सादा लफ्ज़ मेरे पास है नहीं इन्होंने अल्लाह ताला के घर के ताले की दरवाजे की चाबी ली आ गए इन्होंने चाबी लगाई ताला नहीं खोला कहाँ चला गया मेरा मशवरा उठा के पढ़ना तारीख उठा के पढ़ना मैंने पहले कहा है मैं लफ्जों का नहीं हरफों का भी जामन हूँ अब चाबी हाथ में आ गई ताला नहीं खुल रहा बड़े बड़े ताले तोड़ने वाले बुलवाएंगे इन्होंने बड़े बड़े ताले खोलने वाले मास्टर बुलाए बड़े बड़े ताले तोड़ने वाले बुलाए लेकिन चाबी हाथ में न टूटता है न खुलता है न खुलता है
इसमें मौसा नबी का क्या कसूर है? कुरान मिंबर पे ले गए हो, ये तो अल्लाह की अपनी मर्जी है। कुरान कहता है एक अल्लाह का नबी था, 7 ताले लगे हुए थे, ना कोई खोलने वाला ना कोई तोड़ने वाला, ना कोई खोलने वाला ना कोई तोड़ने वाला। नबी यूसुफ पढ़ता गया, ताला खुलता गया, नबी पढ़ता गया, ताला खुलता गया, नबी पढ़ता गया, ताला खुलता गया। मुल्तान वालों, ये अल्लाह की अपनी मर्जी है। जब किसी मसूम की इज्जत बचानी हो 7 खुल जाते हैं, जब किसी एक की मनवानी हो 1 नहीं खुलता। जिसका मैंने वादा किया, रसूल चले, जो नौजवान बोला ना, उसने एहसान किया मुझ पे। अली आए, अली के घर में, रसूल चले अपने घर से। 3 दिन के बाद अली ने आके जैसे ही अम्मा के हाथों, बैठे हो मतवजे हैं, लेकिन मैं मंजर दिखाने लगा जिसका मैंने वादा किया था। 3रे दिन बाद नबियों के सुल्तान ने आके कहा, अम्मा ये अमानत मुझे दो। जो बंदा अभी नहीं ना बोल सकता, मैं जुमला आखिरी पढ़ने लगा हूं, कौन कह रहा है? और आसान करता हूं, जो चांद अभी भी हाथ बांध के बैठा है ना, इस जिक्र में आके हाथ उठाना, जुबान हिलाना दूर की बात, इज्जत अली की कसम है, अकीदा मेरा है। कोई बंदा मेरे अकीदे के साथ जुड़ जाए या चुप होकर बैठा रहे, यहाँ जिस तहलीज पे हम सारे बैठे हैं, यहाँ हाथ उठाना दूर की बात, यहाँ जुबान हिलाना दूर की बात, जहाँ सांस लेना भी इबादत है। जो अकीदे वाला बंदा बैठा है, क्या कहते हैं आपकी मार्फत, अम्मा ये अमानत मुझे दो। कौन कह रहा है? जो वही बोलता है जो वही बोलती है। ये बयान है मेरी कौम का, मजमा बोलना हो जाए, मैं आसान करने लगा हूँ। जो वही बोलता है जो वही बोलती है। 5 मिनट देते हैं। जो वही बोलता है जो वही बोलती है। क्या कहा नबियों के सुल्तान ने आके? कौसर नियाज़ी के जुमले, अम्मा ये अमानत मुझे दे, अम्मा ये अमानत मुझे दे। कौन कह रहा है? अरे जिसके पास काफिर आके अपनी अमानतें रखवाते थे। जिंदाबाद 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 है वो हाथ। मैं बीबी से गुजारिश करूंगा, बीबी फज़ाइल अली का जुमला सुन के इस घर में जो बंदे हाथ बुलंद करें, बीबी इन उठे हुए हाथों को बाद ज़हूर इमाम ज़मा की नालैन पे लगने के काबिल बनाना। बीबी इन उठे हुए हाथों को गाजी अब्बास के रोजे पे लगने के काबिल बनाना। बीबी इन उठे हुए हाथों को हुसैन इब्ने अली के नूरी महल पे लगने के काबिल बनाना। धीमे लहजे में बड़ा जुमला आपको हदिया करने लगा हूँ। नबियों के सुल्तान ने आपका अम्मा ये अमानत मुझे दे, अम्मा ये अमानत मुझे दे। इतने जुमले कहने थे, किताबें उठा के पढ़ना। इधर जैसे ही इतने जुमले नबियों के सुल्तान ने फरमाए, अम्मा ये अमानत मुझे दे, इधर अली की अम्मा के हाथों पे कुरान के ऊपर कुरान आ गया। कुरान के ऊपर कुरान आया, इधर कुरान के ऊपर कुरान आया। नबियों के सुल्तान ने अली को हाथों पे उठाया। नबियों के सुल्तान ने फरमाया, मेरे अल्लाह मेरा दिल कर रहा है जिस तरह इस बच्चे के बाबा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मुझ मोहम्मद को मक्के में लोरियां दी थी, मेरा दिल कर रहा है आज तेरे घर में खड़ा होके तेरा महबूब इसी बच्चे को लोरियां दे, इसी बच्चे को लोरियां दे। मैं धीमे लहजे में बड़ा जुमला पहुंचाने लगा हूँ। नबियों के सुल्तान ने फरमाया, मेरा दिल कर रहा है मेरे अल्लाह मैं इस बच्चे को लोरियां दूं। ये ले जी, मैं लोरी पढ़ के मिंबर भाइयों के हवाले करने लगा हूँ। जैसे ही कहा ना कि मेरा दिल कर रहा है मैं इस बच्चे को लोरियां दूं, तो फतवा मुझ पे ना लगाना। जुमले को सर नियाजी कहे मैं पढ़ूँ लोरियां जो नबी ने अली को दी है, नबियों के सुल्तान ने वलियों के सुल्तान को दी है। नबियों के सुल्तान ने अली को हाथों पे उठा के कहा, जाइली लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, अदुवो का अदुवी, जाइली अंत मिन्नी व अना मिनका। तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां है। इतने जुमले कहते थे। आवाज़े परवरदिगार जिब्राइल के जरिए आई। जिब्राइल ने आके कहा, अल्लाह का हबीब, अल्लाह कह रहा है खर्चे सारे मेरे, अली सारा तेरा।
परवरदिगार मेरा हबीब खर्चे सारे मैं अल्लाह के, अली सारा तेरा, तूने अली को उठा के लोरी दी है। तूने कहा तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, लेकिन अब अली को हाथों पे उठा के एक लोरी अल्लाह की तरफ से दे, एक लोरी अल्लाह की तरफ से दे। बंदा जिंदा हो, मुर्दा बन के नहीं, मर्द बन के बैठा हो और बोले ना हो नहीं सकता। अब अल्लाह की तरफ से अली को जो लोरी मोहम्मद मुस्तफा ने दी, कौसर नियाज़ी लिखते हैं नबियों के सुल्तान ने हाथों पे उठा के अल्लाह की तरफ से अली को लोरी देगा, तेरी आंखें ऐनुल्लाह है। सुल्तान ने अली को हाथों पे उठा के लोरी दी ना, नबियों के सुल्तान ने कहा ना अल्लाह की तरफ से जैसे ही लोरी दी, तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है। जुमला बड़ा कीमती आखिरी लोरी का है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरे हाथ यदुल्लाह है, तेरे दोस्त रज़ी अल्लाह है, तेरे दुश्मन लानतुल्लाह है। दोबारा आपके मुकद्दस चेहरों की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ तो इसी मौजू को आगे हम बढ़ाएंगे। जो बंदा ज़हनी तौर पे जाग रहा है, जो बंदा हल्के का मातमी बैठा है, आगाज़ मसाइब में एक दुआ करने लगा हूँ। अल्लाह भाइयों की सफ़ेद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मोमन आज गुफ्तगू सुन रहा है, जो भी तशरीफ फरमाए, मालिक सब की नेक हजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सारे मातमी जो हल्के के बैठे हैं हाथ बुलंद करें, सारे हल्के के मातमी बैठे। मैं मातम की तैयारी के लिए पहला जुमला पढ़ूं जो इमाम सैयद साजिदीन को पुरसा देने के लिए बैठे हो। सारे मिलकर मातम वाले हाथ उठा के एक दुआ करना, अल्लाह ना करे कभी कोई जवान अपनी बहनें बेटियां लेके शराबियों के बाजार से पहला जुमला मैंने पढ़ा, बंदों ने हाय भी नहीं कहा, आंख में लाना ना मेरे बस में, अज़ादारों ना आपके बस में है, हाय करके आले मोहम्मद को रोना आपके बस में भी है, मेरे बस में भी है। जिसकी अभी हाय नहीं ना निकली, हाय करके हुसैन को रोना हुसैन की बहनों की हसरत है, बड़ी हसरत थी बहनों की, भाइयों को ऊंची आवाज से रोती, भाइयों के लाशों पे बयान करती, अजरे रिसालत ऐसा दिया बयान करना तो दूर की बात, करीब से रस्सियां पहना के जल्दी से गुजार दिया। जो मौला सैयदुल साजिदीन को पुरसा देने के लिए बैठे हो, आज 1450 साल के बाद किसी भाई की 2-3 बहनें होना, भाईजान भाई हो 5 या 7 साल का छोटा सा भाई हो, सिर्फ अभी चंद दिन उसने चलना सीखा हो, छोटा सा भाई, अगर खुदा न खास्ता किसी काम से बहन को लेके बाजार जाना पड़े ना, भाई छोटा सा हो, बहनों का हाथ पकड़ के जब वो बाजार में चले ना, आपने मंजर देखा होगा, सामने अगर 4-5 लोग खड़े हो, उस भाई का दिल कहता है कि मैं अपना रास्ता चेंज कर लूं, मैं अपना रास्ता बदल लूं। अगर रास्ता बदलने का ना मिले, वो भाई आगे बढ़ के कहता पीछे हटो, मैंने बहने लेके गुजरना है। तो जिसे अभी रोना नहीं आया, अज़ादारों किताबें इस बात की गवाह है, शाम के बाजारों में हुसैन की 4 साल की बच्ची सज्जाद के करीब आके कहती है, सज्जाद तो पुप्पियों के करीब खड़ा हो, मैं रास्ता बनवाती हूँ, मैं देखती हूँ कौन है जो रास्ता नहीं देता। मुझे सिर्फ इतना बताओ मातमियों, मैं मौला सज्जाद की शहादत शुरू कहाँ से करूँ? करबला पढ़ूँ, कूफा पढ़ूँ, शाम पढ़ूँ, शराबियों के बाजार पढ़ूँ या जिंदान पढ़ूँ? हर मोड़ पे कत्ल हुआ है हुसैन का बेटा, मुझे बताओ मैं कौन सी शहादत पढ़ूँ इमाम? मैं एहसान करता हूँ बच्चों को लाने के लिए, जब लग गई ना अली अकबर के सीने पे बर्छी,
कोशिश कर लेना, हाथ मारने का है तो सीने पे आ जाए। अज़ादारों मैंने कहा जब लग गई ना अकबर के सीने में बर्छी, जिसकी अभी हाय नहीं निकली, बैगन जब हो गया हसन के यतीम का सबका लाशा पमाल, जिसकी अभी हाय नहीं निकली, अज़ादारों में अमीर ही समझूंगा ना उस बंदे को, अमीर बन के बैठा वो बंदा। जब लग गई ना अली की बेटियों के खेमों को, आ गई रस्सियां अली की बेटियों के हाथों में, चलने लगा ना जब काफिला, कहां से शहादत शुरू करूं। बीबियों की सवारियों में खाक कस्तरी रंग का ऊंट था, जो अपनी बोली में कुछ कहता था सारे ऊंट रोना शुरू हो जाते थे। बीबी फिजा ने अली की आलिया बेटी से पूछा, अली की बेटी ये क्या कहता है? अली की बेटी तड़प के रो के कहती है, अम्मा फिजा ये जानवर, ये ऊंट बाकी ऊँटों को कहता है खबरदार किसी ने तेज कदम नहीं चलना, खबरदार किसी ने तेज कदम नहीं चलना, हया करना हमारे ऊपर, मोहम्मद की बेटियां बैठी हैं, हमें रोना आता तो इन्हीं बातों पे आता मातमियों को। जिन जानवरों ने हया किया उम्मत ने उन्हीं जानवरों को ताजिया ने मार के तेज भगाया, छोड़ दिया सारा मजमून। चलता चलता काफिला जब आया ना शाम शहर के बंद दरवाजे के बाहर, ज्यादा जहमत नहीं, सिर्फ 5 या 6 मिनट की मोहलत दे देना मुझे। जो बंदे सैयद और साजिदीन का बीबी को पुरसा देने के लिए बैठे हो, मुझे बताओ एक दिन में कितनी अज़ानें हो, कितना रोगे? वो जो नौजवान बैठे हो सारी जिंदगी भी रोते रहे, मैं सारी जिंदगी रोता रहूं, दाढ़ी सारी सफेद हो जाए, बाल सारे मेरे सफेद हो जाए, अगर मेरी कब्र झुक जाए, अज़ादारों जितना भी मैं रहूंगा आंखों से पानी रहूंगा। हमें रुलाती तो यही बातें रुलाती, तारीख में एक ऐसा भी गुजरा है जो आंखों से पानी नहीं खून रोता है। अजब में अल्लाह मौला आपको अजीम अता फरमाए, मौला आपकी सभी अदा कबूल और मंजूर फरमाए। बताओ मेरा मौला सज्जाद, हो सकता है यही मसाइब का आखिरी जुमला हो, बताओ मौला सज्जाद की आंख से पहला खून का कतरा कब निकला? मौला सज्जाद की आंख से खून का पहला कतरा मुझे बताओ एक दिन में कितनी अज़ानें होती? 5 अज़ानें। जब शाम शहर के बंद दरवाजे के बाहर अली की बेटियां आगे खड़ी हुई, 15 अज़ानें। अमीर बन के बैठा है वो बंदा जिसकी अभी है नहीं, 15 अज़ानें अली की बेटियों ने बंद दरवाजे के बाहर सुनी। अली की बेटी की आवाज़, मेरा सज्जाद बेटा इन लांतियों को बुला के पूछ तो सही इन्होंने कितनी देर खड़े करना है, तो हमने कितनी देर खड़े होना है। इतने जुमले कहने थे, सज्जाद मौला ने एक लांती को करीब बुलाया, करीब बुला के फरमाया, ओ लांती हमें बता हमने कितनी देर खड़े होना है। ये कमीना आवाज दे के कहता, हमने बाजारों में ऐलान करवाया है जिसने बदर ओद का बदला लेना वो शाम शहर के बंद दरवाजे के बाहर आ जाए, वहां अली की बेटियां खड़ी है। हमें रोना इन्हीं बातों पे आता है, बदले अली और मोहम्मद के थे, लिए अली और मोहम्मद की बेटियों से गए हैं। 15 अज़ानें अली की बेटियों ने सुनी। अब हौसले से सुनना, सज्जाद मौला की आंख से पहला खून का कतरा कब निकला? हौसले से जो सैयद बैठे हो माफ कर देना, एक कमीना और घोड़ा सवार नहीं आया, उसने सज्जाद मौला के हाथ में कागज का टुकड़ा दिया। सज्जाद मौला कागज के टुकड़े पे अपनी मुकद्दस नजरें दौड़ाई। अली की बेटी मंजर देख रही थी, जैसे ही कागज के टुकड़े पे और जिसकी शहादत सुनने के लिए बैठे हो, वो जो सैयदुल साजिदीन मौला है, जो हर एक मजलिस में आता है। आज मजलिस सैयदुल साजिदीन की ना, वो हर मजलिस में आता ना, तो यकीनन फिर आज उसकी मजलिस में गाजी भी आया होगा, अकबर भी आया होगा, हुसैन भी आया होगा। सज्जाद मौला ने कागज के टुकड़े को देखा, पहला खून का कतरा आंख से निकला। अली की बेटी तड़प के रो के कहती है, मेरा बेटा सज्जाद, कौन सा जुल्म है जो तुझ पे हो गया? सज्जाद, अकबर के सीने पे बर्छी लगी तो खून नहीं रोया। कोशिश कर लेना, आवाज़ें बुलंद कर लेना, मैं मिंबर भाइयों के हवाले करूं।
سجاد اکبر کے سینے پہ پرچی لگی تو خون نہیں رویا. سجاد قاسم کا لاشا بمار ہویا, سجاد تو خون نہیں رویا. سجاد اللہ جانے کتنے بچے کربلا سے شام کے بند دروازے تک ہمارے بچے سفر میں گر گئے. سجاد تو خون نہیں رویا. سجاد مجھے بتا تجھے کس نے خون رلایا ہے؟ سجاد کی آواز آئی, آپ اولو الامر علی کی بیٹی ہے, آپ دعا کریں آپ کے سجاد کو موت آ جائے. سجاد یہ منظر نہ دیکھے. بی بی کی دعا آئی, بی بی نے کہا سجاد مجھے بتا موت نہ مانگ, تجھے کس نے خون رلایا؟ سجاد کی آواز آئی, پھپھی اماں انہوں نے یہاں لکھ کے بھیجا ہے جہاں تک علی کی بیٹیاں سواریوں پہ سوار ہو کے آئی ہے. عزاداروں جس نے بستر میں رونا ہے, شام شہر کا بند دروازہ کھلا, تبل بج رہے تھے, شرابیوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے. سجاد نے منظر دیکھا, آواز دے گا انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے جہاں تک علی کی بیٹیاں سوار ہو کے آئی ہے وہ بازار سے پیدل سفر کرے گی. ہمیں راستہ کسی نے نہیں دینا. اتنے جملے کہنے تھے, علی کی بیٹی کی آواز آئی. سجادی نے کہا میں بڑی پردہ دار ہوں اور میں پیدل نہیں چل سکتی, اور جس نے گلیوں میں ماتم کرتے جانا ہے. سجاد نے کہا او کمینو, اور میری پھپھی اماں بڑی پردہ دار ہے, یہ پیدل سفر نہیں کرے گی. ایک کمینہ قریب آیا اور جو سجاد کی مصیبت سننے بیٹھے ہو, اس نے سجاد مولا کی پوچھ سے کپڑا ہٹایا, تازیانے کا بات کرنا شروع کیا. اور جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو, ایک 4 سال کی شہزادی قریب آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اسے نہ مار, اور مجھے پتا کتنا پیدل چلنا ہے, مجھے پتا کتنا سفر کرنا ہے. ادھر روکے نیزہ پہ حسین کے سر سے آواز آئی, علی کی بیٹی اور میرے سینے کا تعویذ اور میری 4 سال کی بچی پیدل چل رہی ہے. علی کی بیٹی کی سواری عزاداروں بیٹھی نہیں, علی کی بیٹی ایسے زمین سے زمین بھی آئی جیسے عباس آتا تھا. بی بی چل کے کہتی ہے پڑھ قرآن اور میں پیدل جا رہی. آدمی سجاد